ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਬਾਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਥਿਊਰਮਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਫ ਰੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਜੋ 3D ਫਿਗਰਾਂ ਨੇ, ਕੋਨ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੋਡ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੋਡ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਸ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਥੋਂ ਮਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਵਰਆਲ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ L ਰੋਡ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਮਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਕਸ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਐਕਸ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੋਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਦਿਓ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੋਡ ਨੂੰ। ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟਤਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆ, ਕਰਵ ਆ, ਕੋਈ ਕਰਵ ਆ, ਇਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ, ਪਾਰਟ ਲਈਏ, ਕਰਵ ਕੱਟਤੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਆਹ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆ, ਨਹੀਂ ਟੇਢਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਟਦਾ ਮੈਂ, ਆਹ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕਰਵ ਮੁੜ ਰਹੀ ਆ, ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੋੜਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਵ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੜ ਰਿਹਾ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਵ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਮਾਲ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਜੀ ਇਕੱਲਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਮਾਲ, ਸਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਂਥ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਲ ਲੈਂਥ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਲੈਂਥ ਆ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਕਸ ਲੈਂਥ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਲੈਂਥ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਸਮਾਲ ਲੈਂਥ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਾਲ ਹਿੱਸਾ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਮਾਲ ਹਿੱਸਾ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹਿੱਸਾ, ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਲ ਹਿੱਸਾ, ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਆਪਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਸਮਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਲ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਸਮਾਲ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਲ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ 2-3 ਥਿਊਰਮਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਥਿਊਰਮਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਾਈ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਲ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ। ਤਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਏ ਬੀ ਹੈ, ਲੈਟ
ABB any uniform rod and AB equal to LC, ये मान लें जो AB की लेंथ है वो अपने L मान लिया। लेट कर लिया डेल्टा XB का स्मॉल पोर्शन ऑफ रॉड, डेल्टा एक्स की आ छोटा जा पोर्शन ले लिया एंड लेट कर लिया जो ए तो लैके आह पॉइंट आपाने सी मान लिया, लेट कर लिया कि ए सी इक्वल टू एक्स मान। ये एक्स की है कि आ ये एक्स ओह आ जिथे आपां ऐ कह लवो ये एक्स आपां ने जनरल वेट कड्ढण वास्ते लिया जी, मतलब इत्थों तो लैके इत्थे तक इदां कह लो कि वेट कितना होगा जां इहदा वेट कितना होगा, ऐ कह लो कि ये जनरल लेंथ मन्नी आपां लेंथ लई आ, ये समॉल लेंथ मिल गई इत्थों डेल्टा एक्स ते इहदा वेट कड्ढण वास्ते आपां डिफाइन कीता, इहदा मास कड्ढण वास्ते सॉरी इहदा मास कड्ढण वास्ते आपां डिफाइन कीता एक्स नूं। चलो ये एक्स हो गया अपने कोल जी, जां होर कह सकते हो कि एक्स की आ ये आपां लभण वास्ते कर रहे हैं कि जिहड़ा सेंटर ऑफ ग्रैविटी है वो कित्थे आऊगा, मतलब जे अपना सेंटर ऑफ ग्रैविटी मान लो आपां एक्स हो गया ये L/2 आ गया तो आपां कहांगे जिहड़ा सेंटर ऑफ ग्रैविटी की पोजीशन हैगी आ वो L/2 होएगी, मतलब सेंटर दे एक्ट करेगा इत्थे किते। तो जिहड़ा एक्स डिस्टेंस मान रहे हैं इदां कह लवो कि ये सेंटर ऑफ ग्रैविटी कड्ढण वास्ते मन्निया कि सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे आऊगी। वैसे आप सेंटर ऑफ ग्रैविटी वास्ते पिछे पढ़ते आ रहे हाँ कि एक्स बार सिंबल लेंदे आ रहे हैं। चलो देखांगे इस तो बाद इहदा मास कटना आप ही करांगे, लेट कर लांगे MB का मास ऑफ रॉड पर यूनिट लेंथ, ये ध्यान दे विच होवे। एक यूनिट लेंथ का मास आपने M मान लिया तो यदा मास कितना होगा मास इंटू लेंथ, देयरफॉर मास ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ रॉड ये कितना होगा मास इंटू लेंथ। स्मॉल पोर्शन का मास कढ लेना अपने, उस तो बाद फार्मूला की है वो देख लो ध्यान नाल कि सेंटर ऑफ ग्रैविटी किवें कढना। पहला की लेना आपने जिहड़ा स्मॉल मास लिया हैगा, स्मॉल मास लिया इनू एक्स नाल मल्टीप्लाई करके समेशन करना बटा नीचे कला मास का समेशन। ये फॉर्मूला ध्यान रखना जी, ये यूज करांगे जी आप आर्टिकल वास्ते। सेंटर ऑफ ग्रैविटी बाय इंटीग्रेशन क्या इंटीग्रेशन आप लैके आवांगे। सेंटर ऑफ ग्रैविटी का फॉर्मूला की है जो स्मॉल पोर्शन लिया आपने आ स्मॉल पोर्शन का मास आया उपर मास नू एक्स नाल मल्टीप्लाई करके फिर समेशन करना, नीचे मास का सीधा समेशन करना। इस तो बाद समेशन इंटीग्रेशन कन्वर्ट कर देना, फॉर्मूला ही है कल। इंटीग्रेशन किवें समेशन की इंटीग्रेशन बनानी है, जो डेल्टा एक्स है इनू dx बना लेना अपने, बाकी उवें ही mx, ये mx आ गया। ते इंटीग्रेशन कित्थों कित्थे जा रही है, रॉड कित्थों कित्थे जा रही जां एक्स कितना वेरी करेगा ओवरऑल। जे आपां इत्थे तक मापांगे फिर एक्स घट जाएगा, जे इत्थों मापना शुरू किया एक्स होर घट जाएगा, इत्थों मापना शुरू किया एक्स होर घट जाएगा, जे शुरू तो इत्थों मापना शुरू किया फिर एक्स कितना हो जाएगा 0। मतलब एक्स की वैल्यू जो है 0 तो लैके वध तो वध आप एक्स कितना लै सकते हैं उरे तक लै सकते हैं बस। तो ओवरऑल एक्स कितना वेरी कर रहा है 0 to L। आह गल्लां ने मेन इंपॉर्टेंट कि इंटीग्रेशन की लिमिटां की लैनियां ने, आप चैक करना कि जो डायग्राम बनाई है एक्स की वैल्यू कित्थों तो कित्थे वेरी करेगी। घट तो घट एक्स 0, एक्स गैप आई देखो आ होर घट गया होर घट गया होर घट गया होर घट गया एक्स, इत्थे 0 एक्स वध के पूरा जाऊगा, पूरा कितना है अपने को L।
तो 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ L तक जाऊगा बटा ये कंसैप्ट है समेशन बनावांगे आप इंटीग्रेशन डेल्टा एक्स को कन्वर्ट करांगे dx ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ m ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਊਗਾ बस यही कंसैप्ट है ये बाकी करांगे आप सब तो मेन गल जी फॉर्मूले सौखे ने जी फॉर्मूला तो आही है सब तो मेन गल सारे ये है कि स्मॉल पोर्शन का आपने मास किवें लैना ये हरेक दे विच अलग कंसैप्ट है बाकी आप करांगे लग जाऊगा पता तो असीं इहनूं सॉल्व कर लेना जी m तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा यदि आऊगी x² इंटीग्रेशन ये चो m बाहर आ जाऊगा 1 की इंटीग्रेशन आ गई जी ये बन गया ml² बटा ml ये कट गया ये कितना आ गया जी l/2 ਇਹਦਾ मतलब की है जो सेंटर ऑफ ग्रैविटी होगा x बार ये l/2 डिस्टेंस से होगा मतलब इथों डिस्टेंस l/2 होगा मतलब पूरा डिस्टेंस l तो l/2 अध विच नहीं आऊगा तो सेंटर ऑफ ग्रैविटी जो है यूनीफॉर्म रॉड का वह अध ते लाई करूगा अध दे मतलब कि मिड पॉइंट ते आऊगा ਇਹਦਾ प्रूफ ਅੱਗੇ ਹੋਰ देखना ਆਪਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट ने जी ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ आर्टिकल करना ਆਪਾਂ सेंटर ऑफ ग्रैविटी of triangular lamina सेंटर ऑफ ग्रैविटी आप ट्रायंगल लैमिना वास्ते करना है कितना होगा ये पहला पढ़िया है जी आप जो ध्यान च होगी ये सेंटर ऑफ ग्रैविटी ट्रायंगल लैमिना वास्ते करना अपन तो देखो तो ध्यान चो ट्रायंगल लैमिना का सेंटर ऑफ ग्रैविटी है वह अपने कोल सेंट्रोइड से एक्ट करता है सेंट्रोइड से कितने होगा हम इंटीग्रेशन किवें करना तो करना की है भला ये देखना कि ये जे आप समॉल हिस्से करांगे आ देखो आ समॉल हिस्सा करता जिमें थोड़ा जहा कंसैप्ट आप जोमैट्रिकली किया आ समॉल हिस्सा करता आ समॉल हिस्सा करता सारे समॉल हिस्से करते सारिया की सेंटर ऑफ ग्रैविटी जो है ये रॉड वांगू बिहेव करेगी सेंटर पे आएगी तो सेंटर ऑफ ग्रैविटी जो है वह पक्का मीडियम के उपर आऊगा जिमें आपने जोमैट्रिकली किया पहला आप यह पता करना होगा ये भी कि सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे आ सकता वो किवें पूरी शीट दे आप बहुत सारे हिस्से कर देवांगे आ सारे हिस्से करते अपने ये हिस्सियां दे मिड पॉइंट ते किते आऊगा सेंटर ऑफ ग्रैविटी जे मिड पॉइंट ते आऊगा तो यह कन्फर्म हो गया कि सेंटर ऑफ ग्रैविटी इत्थे किते होगा ध्यान च होवे जिहड़ा आपां जोमैट्रिकली कीता सीगा उहदे विच पहलां इहदे उपर किहा सी फिर इत्थों मिड पॉइंट बना लए सीगे जी फिर दोने मिल गईयां सेंटर ऑफ ग्रैविटी आ गई सी पर इंटीग्रेशन करना तो इंटीग्रेशन वास्ते पहला कंसैप्ट की आ आपां यह आइडिया लाउणा कि सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे आ सकदा जिथे सेंटर ऑफ ग्रैविटी आ सकदा हैगा उत्थे वो डिस्टेंस नूं आपां एक्स सपोज करांगे किवें देखो हुणे लग गया सेंटर ऑफ ग्रैविटी इत्थे आ सकदा जी तो आपां एक्स इदां वेरी करावांगे क्योंकि इहदे उपर सेंटर ऑफ ग्रैविटी आ फिर आपां एक्स लभांगे सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे आऊगी इंटीग्रेशन तो पहली गल की हैगी आ वो पता करना होगा अपन ये रफ डायग्राम है जी फेयर डायग्राम दे विच आपां पॉइंट्स नहीं ड्रॉ करने ABC सिर्फ कला मीडियन ड्रॉ कर दो तो ये सारियां दी बजाय एक छोटी जी आपां स्ट्रिप ले लो दिखाने वड्डी दिखाई है आह डिस्टेंस आपां एक्स मनांगे आह डिस्टेंस आपां एक्स मान
सो ध्यान दो, तो लैट किया आपां ने, लैट ए बी सी बी एनी ट्रायंगुलर लैमिना, ये सपोज कर लिया आप ट्रायंगुलर लैमिना मान लिया जी, ते लैट कर लिया ये छोटा पोर्शन जो है ये डेल्टा एक्स मान लिया। लेट अस, चलो आह अपना कर दें, लेट अस डिवाइड द ट्रायंगुलर शीट या ट्रायंगुलर लैमिना इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, स्मॉल स्ट्रिप्स, इसे डिवाइड करता है नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रिप के विच। Therefore center of gravity lies on the midpoints of each strip, ये पहला क्या सारे मिड पॉइंट दे विच आएगा। Therefore center of gravity of triangular lamina lies along median AD, ये AD मीडियन तो अप्लाई करूँगा किते, ये पता नहीं AD मीडियन अप्लाई करूँगा, तो लेट कर लिया आपने, लेट कर लिया ABCDE मान लो, लेट कर लिया जो AE डिस्टेंस है इनू आपां X सपोज कर लिया, जिहड़ा AE डिस्टेंस है इनू आपां X सपोज कर लिया जी। देखी जाइए ध्यान नाल, अते जिहड़ा EF हैगा उन्होंने स्मॉल पोर्शन ले लिया आपां ने डेल्टा X, ये आपां स्मॉल पोर्शन ले लिया। हुण इहदा मास कटना कितना होगा, ध्यान रखनी है, जे इदां होवे जी, मतलब जे कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा इनू आपां एरिया कहने हैं, ये सिंगल लाइन आह जो अंदर जगह ऑक्यूपाई हो रही है इनू आपां एरिया कहने होंगे। जे कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है, जिवें बॉल लै लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है बॉल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ वॉल्यूम कहने हैं। जिवें बॉल आ स्फीयर आ जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है ਉਹਨੂੰ वॉल्यूम कहने हैं। ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ जी गल कर लो, ਜਿਹੜੀ जगह प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ कवर हो रही है, प्लेन आ प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ कवर हो रही है ਇਹਨੂੰ एरिया कहने ਆਪਾਂ, ਇਦਾਂ कह लो। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ स्पेस ऑक्यूपाई हो रही हैगी आ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ वॉल्यूम कहने हैं। जिवें एक सिंपल जी होर गल कह लवो, जिवें सफीयर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬॉल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ। वॉल्यूम ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ स्पेस ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ। ਤੇ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟ ਇਹਨੂੰ ਇਹ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ एक कागज आ, एक कागज का हिस्सा, कागज कह लो, ये पानी का पा नहीं सकते, इसका वॉल्यूम नहीं कोई है, पर यह पेंट तो कर सकते, जिन्ना आप पेंट करांगे वो की होगा एरिया हो। तो 2D विच एरिया होंदे ने, 3D विच वॉल्यूम भी होंदा, एरिया भी होंदा, 2D च वॉल्यूम नहीं होंदा। 2D च तो ये 2D ट्रायंगल 2D शेप है, ये वॉल्यूम नहीं होगा। तो ये करना की हैगा, उमें लैट कर लिया, लैट एम बी द मास पर यूनिट एरिया, जिहड़ा एम हैगा उन्होंने मास पर यूनिट एरिया मान लिया। पहला वांग देखो पिछले की मन्निया सी आपां मास पर यूनिट लेंथ मन्निया सी,
ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਮਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੋਡ 'ਚ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਮੰਨਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਮਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਊਗਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਲੈਂਥ ਜੋ ਹੈ ਓਵਰਆਲ AD, ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ AD ਲੈਂਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ L। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਆ, ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਆ ਨੌਨ ਪੈਰਲਲ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸ਼ੇਪ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮਾਲ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੀ, ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆ। ਹੁਣ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਮੰਨਣੇ, ਆਹ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਮੰਨ ਲਏ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਦੋਨੇ ਟੇਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੇਢਾ ਪਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚ ਟੇਢਾ ਪਾਨਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਘਟਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਟੇਢਾਪਨ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੋਰ ਘਟਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਟੇਢਾਪਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੈਂਥ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਆ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਲੈਂਥ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਵਾਂਗੂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਗੇ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਜ਼ੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੋਚਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ BA ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਵਾਂਗੂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਵਾਂਗੂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਆਹ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਬਸ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, ਆਹ ਬ੍ਰੈਡਥ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਡੈਲਟਾ x। ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਆਹ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਆਹ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਆਹ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਡੈਲਟਾ x ਹੀ ਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਸ ਲੈਂਥ ਰਹਿ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ L ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ L ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੈਂਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ L ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਆਹ ਲੈਂਥ ਨਿਕਲ ਜੇ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲੈਂਥ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਜੇ ਆਹ ਲੈਂਥ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤਾਂ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੈਂਥ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਟਰਾਇੰਗਲ ADC is similar to triangle AEI। ਇਹ I ਨਾਲ ਆਹ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਬਸ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸਿਮਿਲਰ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ AEI ADC, ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਾਮਨ ਆ ਤੇ ਇਹ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਮੰਨੀ ਆਪਾਂ। ਦੋ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਟਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਟਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AE ਜਾਂ AD ਬਟਾ AE, AD ਬਟਾ AE is equals to EI ਬਟਾ DC ਬਟਾ EI। ਆਹ ਲੋੜ ਆ ਬਸ ਕੱਲਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, AC ਬਟਾ AI ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ। ਚਲੋ AD ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆ L, AE ਪਤਾ X, DC ਨਹੀਂ ਪਤਾ, DC ਆਪਾਂ ਫਿਰ A ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ।
A upon EI where BC equals to A। तो इतों अपने को EI लेंथ आ गई, वो कितनी आ गई AX/L। Therefore एरिया ऑफ स्ट्रिप ये कितना होगा, लेंथ, ठीक है जी। ये ट्वाइस क्यों पाया आप इत्थे, ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये समझ आ गया होना। ये तो EI लगी है ना, ओवरऑल लेंथ कितनी होगी 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया, बस आही चीज मेन इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ स्ट्रिप आ गया तो मास ऑफ स्ट्रिप की होगा, एरिया नो मास में मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मास पर यूनिट एरिया जी। तो ये हो गया 2AX/L डेल्टा X इंटू M, ये मास ऑफ स्ट्रिप हो जाएगा। बस यही गल इन्हां च इंपॉर्टेंट है सारे कि जिहड़ी स्ट्रिप हैगी आ उहदा मास किवें निकलूगा, यही गल। हुण फॉर्मूला की आ, Therefore X बार पहला की करना, समेशन पा के मास पाना 2AX/L डेल्टा XN मास इंटू X पाना एक्सट्रा, ये नीचे कला समेशन दे विच कला मास ही पाना है, बस ये फॉर्मूला है। फिर इंटीग्रेशन किवें करनी है जी, समेशन नूं तुसीं इंटीग्रेशन कन्वर्ट करना, ओवरऑल कितना वेरी कर रहा है X, घट तो घट X कितना होगा, घटा लो 0, वध तो वध कितना जाऊगा जी L तक, घट तो घट 0 वध तो L तक। ये आ गया 2AX² बन गया M/L डेल्टा X नूं आपां DX च कन्वर्ट करना बटा 0 to L 2AX M/L डेल्टा X नूं आपां DX च कन्वर्ट, बाकी काम सौखा जी, यही ये पर ही आपां मेन जोर लावांगे सारिਆਂ 'ਚ। ये विचों कॉमन कढ़ लो जी, 2AM/L कॉमन निकल गया, X³/3 0 to L 2AM/L, ये आ गया X²/2 0 to L, ये कट गया सारा, ये बन गया L³/3 बटा L²/2, ये कट गया जी, ये बन गया 2L/3। हुण गल समझनी आ ध्यान नाल कि है की है, जिहड़ा सेंट्रोइड होगा ओह कित्थे एक्ट करेगा, इत्थों लिया अपने आह डिस्टेंस कढ़ता आपां हुण 2L/3, इत्थे एक्ट करूगा सेंट्रोइड 2L/3 होगा। ओवरऑल लेंथ कितनी है L का, मतलब जिहड़ा सेंटर ऑफ ग्रैविटी है वो इत्थे एक्ट करेगा। पर आपां तां पढ़िया होया हैगा जिहड़ा सेंटर ऑफ ग्रैविटी है ਉਹ ट्रायंगल के केस सेंट्रोइड से आता होंगे, फिर तो कुछ होर आंसर कट रहा है, ये 2L/3 कर रहे, ये कोई होर आंसर नहीं है, 2L/3 ते ही सेंटर ऑफ ग्रैविटी आऊगा, ये सेंट्रोइड है। मैं करके दिखा रही किवें, ओवरऑल लेंथ L हैगी आ, आह लेंथ 2L/3 है, तो आह कितनी होगी L चो माइनस कर दूँ, कितनी आऊगी 1/3L, दोनों रेशो कितनी बनेगी, मतलब 2L/3 बटा 1/3L कट गया, 3 कट गया, यह 2/1, ये रेशो 2:1 बन गई। मीडियन नूं किहड़ा अजिहा पॉइंट है जो 2:1 से डिवाइड करता, वो सेंट्रोइड ही हुंदा, तो ये पक्का सेंट्रोइड ही होगा, जिहड़ी आ च कड्ढी आपां 2L/3। चलो ये अपना इहदे विच सीगा पार्ट, अगे देखो सो ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। 3
3D फिगर आएंगे हम जी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। सॉलिड होंदी हैगी है जी ठोस होवे, अंदरों खाली ना होवे। राइट सर्कुलर कोन किहड़ी हुंदी है, इदां दी हुंदी है जी सीधी, ਉਹਦਾ बेस की होवे सर्कल। ये राइट सर्कुलर कोन है जी, ਉਹਦਾ बेस सर्कल। ये सॉलिड मतलब कि अंदरों खाली नहीं हैगी, ठोस है। ਇਹਦਾ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कित्थे होਊ? दो करांगे आपां, एक सॉलिड वास्ते करांगे आपां, एक हॉलो वास्ते। खाली या फिर की आऊगा? हुण सेंटर ऑफ ग्रेविटी ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਟਣਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਾਂਗੇ देखो उवें है जी। ਇਹਨੂੰ नंबर ऑफ स्ट्रिप्स नहीं कहांगे। स्ट्रिप की हुंदी आ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਸਰਕਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਠੋਸ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਲ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਸਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ। ਇਹ ਕੱਟਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਕੱਟਤਾ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਡਿਸਕ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਸਕ ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਕੱਟਤਾ, ਫੇਰ ਡਿਸਕ ਬਣ ਗਈ, ਫੇਰ ਕੱਟਤਾ, ਫੇਰ ਡਿਸਕ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਸਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਫੇਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਲੈਟ ਅਸ ਕੰਸੀਡਰ ਆ ਕੋਨ, ਇਹ ਕੋਨ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਲੈਟ ਅਸ ਡਿਵਾਈਡ ਇਟ into number of circular discs parallel to base। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਬੇਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕੱਟਣਾ ਆਪਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੱਟਣਾ ਆਪਾਂ, ਟੇਢਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਸਰਕੂਲਰ ਡਿਸਕ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ ਸਾਰਾ, ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਡਿਸਕ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਰਾ। ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਆਊਗਾ, ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਰਕਲ, मतलब इस लाइन तो इस लाइन के उपर कितने आऊगा? इनू ए, इनू बी मान लो, सी मान लो, ए डी लाइन के उपर आऊगा। देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ईच डिस्क लाइज ऑन सेंटर। सेंटर तो लाई करेगा बिकॉज एक सार मोटी है, एक सार है सारी। Therefore center of gravity of cone lies on, ਇਹ ਪੱਕਾ AD ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ X ਮੰਨਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ वो करन लग्या जी। मैं ये रफ डायग्राम से जी हम फेयर बना रहे हैं। सीधा होगा जी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा राइट है ना, ये एंगल 90 होगा। जे ध्यान च होवे कोन दे विच ਇਹ एंगल का नाम हुंदा हैगा जी सैमी वर्टिकल एंगल। ये पूरा वर्टिकल हुंदा, ये अद्धा हुंदा। लेट कर लेट अल्फा बी सैमी वर्टिकल
एंगल जिहड़ा सैमी वर्टिकल एंगल है वो अल्फा सपोज कर लिया। सो देखो तो लैट कर लिया आपां, उस तो बाद चलो लैट करते हैं। फिर एक छोटा जिहा पोर्शन लेना होंदा आपने, छोटा जिहा पोर्शन की ले लिया, आह छोटा जिहा पोर्शन ले लिया जी, ਇਹਦਾ दिखाने वास्ते ही है, ये छोटा जिहा पोर्शन ले लिया, मतलब एक डिस्क ले ली अपने। तो आह डिस्क की जिमें आप एक्स इदा वेरी करवा रहे हैं तो आह लेंथ कितनी होगी, डेल्टा एक्स होगी लेंथ आह वाली, ये एक्स थोड़ी चेंज, एक्स में थोड़ी चेंज ली अपने, डेल्टा एक्स होगी। हुण एक्स इदा क्यों मन्निया, बिकॉज ये उपर सेंटर ऑफ ग्रैविटी होगा, तो जिहदे उपर सेंटर ऑफ ग्रैविटी आएगा उत्थे आप एक्स लेना है। ए पॉइंट ई ले लिया, ए एफ ले लिया। ये लेंथ जो हैगी आ वैसे हाइट ऑफ कोण होंदी है, हाइट ऑफ कोण आप एच सपोज कर ली, ये हाइट ऑफ कोण होंदी है। लैट कर लिया अपने, ए डी इज इक्वल टू एच, तो ए ई आप एक्स मान लिया, जिहड़ा ए ई आई हैगा वो हो गया अपने को डेल्टा एक्स। ये सारा सपोज कर लिया। हुण की करना आपां, जिहड़ी ये सर्कुलर डिस्क हैगी है, हुण 3D विच आ गया जी, ਇਹਦਾ वॉल्यूम कड्डांगे, ਇਹਦਾ मास कड्डना वा, सिंपल जी गल आ, मास कड्डना आपां। हुण ये वॉल्यूम लग रहा होगा जिवें इदां ही डिस्क है, मैं तुहानूं बना के दिखा रहा, ये सर्कुलर डिस्क हाइट भी होगी, हाइट भी है, हाइट डेल्टा एक्स होगी, ये गुलाई भी हैगी है, इसकी गुलाई भी हैगी है, तो ये सर्कुलर डिस्क हो गई अपने को। हुण इहदा मास कड्डना आपां, मास किवें कड्डांगे, हुण वॉल्यूम की गल हो रही है, वॉल्यूम है आपां एम मान लवांगे, लैट एम बी मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिहड़ा एम मास सपोज कर लिया पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम का मास आप एम मान लिया। हुण इहदा वॉल्यूम कड्डांगे, इहदा वॉल्यूम कड्ड के उहनूं आपां एम नाल मल्टीप्लाई करांगे, वो वॉल्यूम का मास आ जाऊगा। बस ये काम करना। हुण वॉल्यूम कड्डना किवें आ, ये की शेप बन रही है, मैं बना के दिखा रहा जी, ये सिलेंडर शेप बन रही है जी, सर्कुलर डिस्क आ, दिखाने वास्ते है जी। ये हाइट वड्डी दिखाई है, समझ आ जाए, ये हाइट डेल्टा एक्स आ मान लो पता नहीं रेडियस, तो सिलेंडर का वॉल्यूम की हुंदा हैगा, वो हुंदा जी जे आपां हाइट एच मान लीए, रेडियस आर मान लीए, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हुंदा पाई आर स्केयर एच। इस डिस्क जो है ये सिलेंडर वांगू बिहेव करेगी, समझाने वास्ते ही है, डिस्क तो छोटी जी होगी बस नहीं की, आ डिस्क होगी उपर वाली, ये हाइट वड्डी क्यों की, तो शेप समझ आ जाएगी, शेप की बन रही है, ये शेप जो हैगी आ वो सिलेंडर बनेगी। हुण दिमाग च गल आ रही होवे, ये सिलेंडर किद्दां बनेगी, लाइनां तां टेढ़ियां ने जी, आ लाइन टेढ़ियां ने, देखो लाइन टेढ़ी जा रही है, ये सिलेंडर किद्दां बनाता अपने, ये पहला वांग जी पिछले आर्टिकल च कीता हैगा। जे आपां समाल पोर्शन लवांगे तो आ टेढ़ियां लाइन सीधियां इदां बिहेव करनगियां, इदां सीधियां, फिर इहनूं आपां सिलेंडर की शेप च मन सकते हैं। फिर यह की बन गया, भाई आर स्केयर एच हुंदा वॉल्यूम इहदा, बस अपना काम की है, एक तो आह कड्ढना आपां, इहदा रेडियस आपां आर सपोज कर लेना, बस ये रह गया। हाइट का पता नहीं कितनी है, डेल्टा एक्स, बस इस पोर्शन का आ रेडियस फाइंड करना रह गया, रेडियस कितना होगा, बस आ रेडियस फाइंड करना अपन इस पोर्शन, जे गल समझ आ रही होगी, बस कला आप इस पोर्शन का रेडियस कला फाइंड करना, ये पहला वांगू ही है जी। तो देखो पहला मैं किमें कर रहा हूँ, चेक कर लो कि आप हाइट एच मान ली है, तो देयरफॉर जो ट्रायंगल है, गौर ना देखियो, आह ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए ई एफ,
AEF ले लिया ट्रायंगल अपन समझो ध्यान नाल। एंगल पता आपां नूं एक साइड पता हैगी है, एंगल पता जी एक साइड पता आपां नूं, तां आह साइड तां आपां लभ सकदे ट्रायंगल दे विचों कि आह किन्नी आऊगी, किवें जिहड़ी EF आऊगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये टैन हुंदा हैगा, तां EF आ गया x टैन अल्फा, आ रेडियस हो गई। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सर्कुलर स्ट्रिप, इसका वॉल्यूम की होगा, ये वॉल्यूम आएगा पाई r स्केयर इंटू h, इतने सीधे पाना पाई r स्केयर इंटू हाइट h, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है ये हुंदा है जी पाई r स्केयर h, बस ये वॉल्यूम आ गया। ये तो हमारी मर्जी है कि टैन अल्फा कट सकते, टैन अल्फा कितना होगा जी R अपॉन H, ये कट सकते हो वड्डे ट्रायंगल चो, बाकी थोड़ी मर्जी है। एक अल्फा कॉन्सटेंट होंदा है बाहर निकल जाएगा, वैसे फर्क नहीं पैना कोई। तो मास आ जाएगा मास ऑफ स्मॉल सर्कुलर डिस्क आना सी, स्मॉल सर्कुलर डिस्क, ये आ गया मास इंटू वॉल्यूम पाई x स्केयर टैन स्केयर अल्फा डेल्टा x। बस आह चीज़ ही मेन आ कि किवें कढना हैगा, बाकी तो काम अगे सौखा ही है। मास निकल गया इहदा, देयरफॉर x बार का फॉर्मूला की होगा सेंटर ऑफ ग्रैविटी का, पहला समेशन पा के मास लैना इत्थे जी, फिर इनू x नाल मल्टीप्लाई करना, नीचे कला समेशन कला मास का लेना आपां, इनू इंटीग्रेशन च कन्वर्ट कर लवांगे। जो इंटीग्रेशन कन्वर्ट किया ये बन गया इंटीग्रेशन ओवरऑल x कितना वेरी कर रहा है 0 तो लैके h तक, h लिया अपन किवें करना ये विच, बस ये इंटीग्रेशन बनेगी, ये dx बनेगा, बाकी सारा इदां ही आऊगा m पाई टैन स्केयर अल्फा x क्यूब dx बन जाएगा, नीचे आऊगा 0 टू h m पाई x स्केयर टैन स्केयर अल्फा dx, ये आ गया। इंटीग्रेशन कर लो, सारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा जी, m पाई, थोड़ी गल ध्यान रखनी है कि दिमाग च आ रहा होगा कि ये टैन अल्फा किवें कांस्टेंट कहता आपां इदां एक्स वेरी कर रहे हैं, पहला आ स्ट्रिप लई, फिर आ स्ट्रिप लई, फिर आ स्ट्रिप लई, इदां स्ट्रिप ले रहे हैं कि अल्फा चेंज हो रहा नहीं, अल्फा तो सेम ही है। आ स्ट्रिप ले लो तां भी अल्फा ही लवांगे, आ स्ट्रिप ले लो तां भी अल्फा ही लवांगे, अल्फा कांस्टेंट है चेंज नहीं हो रहा, तां इहदे विचों x 4/4 0 टू h आ गया, नीचे m पाई टैन स्केयर अल्फा x क्यूब बाई 3 0 टू h आ गया, ये कट गया सारा, ये आ गया h 4/4 बटा h क्यूब बाई 3, ये कट गया जी, ये बनूगा 3h/4। तो सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे आऊगा जी 3h/4, मतलब आह डिस्टेंस ला लो, आह डिस्टेंस 3h/4, तो सेंटर ऑफ ग्रैविटी जो है ये पूरे कोण का इत्थे आऊगा जी, ये आप दिमाग ला सकते हैं। ये हिस्सा पतला, ये मोटा, तो सेंटर ऑफ ग्रैविटी इधरले पासे होगा, सेंटर तो नहीं होगा, थोड़ा अगे होगा, ये 3/4h पे आऊगा सेंटर ऑफ ग्रैविटी। ये याद भी रखने ने अपने, प्रूफ तो करने। चलो ठीक है जी, कुछ आर्टिकल आप अज किए ने, तो बाकी रहिंदे आर्टिकल आप नैक्सट लैक्चर में करांगे जी, फिर आप इस तो बाद एक्सरसाइज शुरू करांगे जी। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लियो जी। थैंक यू।